محکمہ خوراک میں اربوں روپے کی مبینہ خرد برد کا بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ ایک ماہ کے دوران 30 سے زائد افسران کے خلاف بدعنوانی ثابت ہوئی۔ افسران کے خلاف کارروائی کے لیے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو خط لکھ دیا گیا۔ متعدد افسران کو برطرف، معطل اور کئی کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے۔ سال 2022-23 کے دوران سرکاری گوداموں سے ہزاروں گندم کی بوریاں غائب ہونے کا انکشاف۔ فوڈ کنٹرولرز، اسسٹنٹ کنٹرولرز اور فوڈ انسپیکٹرز ملوث پائے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاجز جمالی سے۔ جی عاجز، کیا تفصیلات ہیں؟ یہ تو بڑا اسکینڈل ہے۔ جی ہاں، بالکل حالیہ سالوں میں یہ محکمہ خوراک سندھ کا ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، جس میں اربوں روپے کی گندم غائب ہو گئی، چوری ہو گئی یا گندم غائب کر کے بوریوں میں مٹی بھرا گیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود محکمہ خوراک سندھ نے اپنے ہی افسران کو برطرف کیا ہے، شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں یا سسپینڈ کیا ہے، معطل کیا ہے۔ ان احکامات میں جو برطرفی کے احکامات ہیں یا شوکاز ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک ایک افسر کے نام وہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے گندم کی کتنی بوریاں غائب کی اور قومی خزانے کو کتنا نقصان پہنچایا۔ یہ سال 2023 اور 24 میں سندھ حکومت کا جو ٹارگیٹ تھا گندم کا 14 ملین میٹرک ٹن، اسی گندم کی خریداری میں کراچی سے لے کے کشمور تک مختلف اضلاع میں یہ گندم خرید کر جو سرکاری گوداموں میں رکھی گئی اور پھر سرکاری گوداموں سے یہ گندم غائب ہو گئی۔ اور یہ معمولی نہیں ہے، ایک ایک انسپیکٹر، فوڈ انسپیکٹر یا فوڈ کنٹرولر پر کروڑوں روپے کا الزام ہے، جن کو اب برطرف کیا گیا ہے اور اینٹی کرپشن کو ان کے مقدمات بھیجے جا رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ 30 سے زائد ایسے افسران ہیں محکمہ خوراک کے، جن میں فوڈ کنٹرولر بھی ہیں، اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر ہیں، فوڈ انسپیکٹرز ہیں، اسسٹنٹ فوڈ انسپیکٹرز یا فوڈ سپروائزرز بھی ہیں، جن پر یہ الزام ہے۔ جس میں اگر میں بہت ساری تفصیلات ہیں لیکن کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو خالد حسین مکسی ہے، یہ فوڈ انسپیکٹر کمبر شہداد کوٹ ہے، ان پر الزام ہے کہ 33,791 گندم کی بوریاں جو ہے غائب ہوئی ہیں اور 61 کروڑ 75 لاکھ روپے کی گندم جو ہے انہوں نے غائب کی ہے۔ دوسرے ہیں ممتاز علی جتوئی، یہ فوڈ انسپیکٹر ہیں اور یہ فوڈ انسپیکٹر ڈوکری کے لاڑکانہ میں ہیں اور انہوں نے بھی 3,484 گندم کی بوریاں جو ہیں غائب کی ہیں۔ 42 کروڑ 28 لاکھ روپے کا ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے۔ محمد شریف بھٹو ہیں، فوڈ سپروائزر ہیں، ان پہ بھی الزام ہے کہ 4,490 گندم کی بوریاں انہوں نے غائب کی ہیں اور انہوں نے خرد برد کی ہے سرکاری رقم میں بھی 1 ارب 12 کروڑ روپے کی۔ شبیر احمد مکسی ہیں، فوڈ انسپیکٹر ہیں کمبر شہداد کوٹ کے، انہوں نے 2,908 بوریاں غائب کی ہیں، 38 کروڑ روپے کا ان پر الزام ہے۔ محمد علی اجن ہیں، اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر ہیں سکھر کے، 1028 میٹرک ٹن انہوں نے جو ہے گندم غائب کی ہے، 4 کروڑ 49 لاکھ روپے کا انہوں نے نقصان پہنچایا۔ نصیب اللہ بروئی ہیں، فوڈ انسپیکٹر، 4,940 گندم کی بوریاں انہوں نے غائب کی ہیں، 9 کروڑ 85 لاکھ روپے کا انہوں نے نقصان جس پہنچایا ہے۔ طرح سے آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہ تو یہی بات ہو گئی کہ چوروں کے ہاتھ میں تالے۔ یہ بتائے گا کہ جتنے بھی معطل اور برطرف افسران ہیں، ان سے یہ جو رقم ہے یہ وصول بھی کرنے کی کوئی ہدایت کی گئی ہے؟ بالکل جی، محکمہ اینٹی کرپشن جو ہے، جیسے آپ نے شروع میں بتایا تھا، میں نے بتایا کہ 30 سے زائد ایسے افسران ہیں جن کو شوکاز ملے ہیں، یا ان میں سے 15 ایسے ہیں، 14 تقریباً، جن کو برطرف کر دیا گیا، جن کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا ہے، جن کو شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں، ان کا کیس ابھی چل رہا ہے۔ یہ 15 کے لگ بھگ جتنے افسران کو برطرف کیا گیا، یہ یا تو فوڈ کنٹرولر ہیں یا فوڈ انسپیکٹر ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ فوڈ انسپیکٹر جو ہوتا ہے وہ ایک سینٹر کا انچارج ہوتا ہے اور ہر سینٹر میں سرکاری گندم خرید کی جاتی ہے، جبکہ فوڈ کنٹرولر جو ہوتا ہے وہ تقریباً ڈسٹرکٹ کا انچارج ہوتا ہے، پورے ضلع میں کئی سینٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے ان کے خلاف کارروائی اب ہوگی۔ ایک تو برطرفی ہو گئی، ان کے شوکاز ہو گئے، معطلی ہو گئی، لیکن اب ان کے خلاف، ان میں ایک ایسا افسر ہے جس کو اینٹی کرپشن نے گرفتار بھی کیا ہے۔
لیکن ان ساروں کے مقدمات جو ہیں اب اینٹی کرپشن میں جائیں گے اور اینٹی کرپشن کے خلاف کارروائی کرے گی. لازمی ہے اس کارروائی کا مقصد یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان سے یہ جو کروڑوں روپے ایک ایک بندے نے کروڑوں روپے کھائے ہیں یہ رقم ان سے وصول کی جائے گی. یہ لکھا ہوا ہے محکمہ اینٹی کرپشن کو, جو محکمہ خوراک سندھ نے لکھا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ان سے سرکاری رقم میں جو انہوں نے خورد برد کی ہے وہ رقم جو ہے ان سے وصول کی جائے. ٹھیک ہے عاجز, آپ کا شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. کراچی میں پہلی بار تھانے داروں کی تعیناتی میرٹ پر کیے جانے کا امکان. کراچی پولیس آفس میں ایس ایچ او شپ کے لیے ہونے والے انٹرویوز میں 50 انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کامیاب ہو گئے. فہرست سٹی 21 نے حاصل کر لی ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے معراج اختر سے. جی معراج, آگاہ کیجیے. کراچی پولیس میں اب تھانے داری جو ہے پیورلی میرٹ پر ہوگی, یہ امکان پیدا ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی جیسے شہر میں ہمیشہ سے مبینہ طور پر سفارشی یا سیاسی دباؤ کے تحت یا پھر مبینہ طور پر ٹینڈر بھر کے جو ہے وہ تھانے داری حاصل کی جاتی رہی ہے اور پولیس افسران اس دوڑ میں بہت آگے رہے ہیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں اس وقت موجود ہوں کے پی او کے باہر. کے پی او میں جو ہے پہلے مرحلے میں ایس ایچ اوز کے لیے انٹرویوز تھے اور اس میں میسیج کے ذریعے ان کو آگاہ بھی کیا گیا تھا کہ جو پولیس افسران جو کہ سب انسپیکٹر اور انسپیکٹرز ہیں اگر وہ ایس ایچ او لگنے کے خواہش مند ہیں تو وہ اپنے نام جو ہے اور اپنے قوائف جو ہے وہ کے پی او میں جمع کرا دیں. جس کے بعد 500 سے زائد افسران نے جو ہے کے پی او میں جمع کرائے تھے اپنے نام, جن میں سے اب پہلے مرحلے میں 270 افراد نے حصہ لیا. ان کے انٹرویوز ہوئے یہاں پر کراچی پولیس آفس میں اور انٹرویوز کے بعد اس میں سے صرف 50 ایسے پولیس افسران ہیں جن میں سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر لیول کے شامل ہیں لوگ جو کہ اس انٹرویو کو پاس کر سکے ہیں. جو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کے پی او سے, جس کے اندر لسٹ بھی جاری کی گئی ہے, فہرست جاری کی گئی ہے ان 50 خوش نصیب افسران کی جو کہ میرٹ پر جو ہے اپنے انٹرویو میں پاس ہوئے ہیں اور اب امید ہے کہ ان کو فٹ قرار دیا گیا ہے. اپر کورس بھی وہ کر چکے ہیں تو ان کو میرٹ پر ایس ایچ او لگا دیا جائے گا. تو ایک بہت بڑا امکان پیدا ہوا ہے کہ اب شاید میرٹ پر کراچی میں ایس ایچ او لگ سکیں. اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جو کہ سٹی 21 نے بھی حاصل کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر میرٹ پر فیصلے ہوتے ہیں کراچی پولیس میں تو ان 50 لوگوں کو جو کہ باقاعدہ انٹرویو دے کے اور ایگزام دے کے پاس ہوئے ہیں ان کو ایس ایچ او لگایا جاتا ہے یا پھر پولیس اپنی پرانی روش پر برقرار رہتی ہے. جی. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں قائم کمپلین سیل کو 22 روز مکمل ہو گئے, جہاں روزانہ کی بنیاد پر مشیران اور وزراء شہریوں کی شکایات سننے کے لیے موجود رہتے ہیں. آج معاون خصوصی امان اللہ محسود بھی کمپلین سیل پہنچے اور شہریوں کی شکایات سنی. کہا کہ 90% شکایات سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ کی بھرتیوں اور ہاری کارڈ سے متعلق ہیں. مزید جانتے ہیں اقصیٰ شاہد سے. جی اقصیٰ, اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل, میں روزانہ کی طرح آج بھی سیم ہاؤس کے کمپلین سیل میں موجود ہوں. جیسا کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پر کمپلینس موصول ہوتی ہیں, معاون خصوصی ہوں یا پھر وزراء ہوں یا پھر جو ہے وہ مشیر یہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں. آج معاون خصوصی امان اللہ مسعود کی یہاں پر ڈیوٹی لگی ہے, دوسری شفٹ میں ان کی ڈیوٹی تھی. ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سی کمپلین زیادہ آ رہی ہیں اور کس طریقے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ان پہ ایکشن لیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہاں پر مسائل تو کافی ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر لیں, اسی لیے کمپلین سیل بنائی گئی ہے. اس میں زیادہ تر پولیس کی شکایت آ رہی کہ کچھ لوگوں نے اپلائی کیا, ابھی تک کچھ رزلٹ نہیں آیا. کچھ لوگ پانی سیوریج کے لیے کر رہے ہیں, کچھ لوگ ہاری کارڈ جو ہے وہ ان کے لیے اپلائی کی, ابھی تک ان کو نہیں ملی ہے. تو مختلف کمپلینس ہے. ایک ایریا ہے گلشن عدید ایکسٹینشن کا, وہاں ایک ایسا ایریا کہ وہاں کہہ رہے پانی بھی نہیں ہے, سیوریج روڈ نہیں ہے, اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں. جیسے کچھ ایریوں میں آر او پلانٹ نہیں ہے, اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں لگوایا جائے. کچھ ایریوں میں پانی سیوریج مختلف مسائل ہیں. اچھا, آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام کی شکایتوں کا ازالہ کیا جائے گا؟ انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری ریگولر اسی طرح ڈیوٹی رہے گی تو بالکل شکایتوں کا یہ ہم, کیونکہ عوام کی وجہ سے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور چیئرمین بلاول صاحب کا ویژن ہے اور خاص کر ہمارے سی ایم کا مراد علی شاہ, تو یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل, لیکن پہنچ رابطے کا, اور یہ ایک رابطے کا اچھا طریقہ ہے.
जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथ जो है वो मुआविन खुसूसी मौजूद थे और ये कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर अगर ड्यूटी लगाई जाए तो यकीनी तौर पे जो है वो जितनी भी शिकायतें हैं, आज भी हम देखते हैं कि रोज़ाना जो है वो 100 से 200 शिकायतें भी जो है वो क्रॉस हो जाती हैं, लेकिन आज भी अगर शिकायतें होंगी तो उनका इजाला किया जाएगा। फौरी तौर पर मुतहर्रिक हमें नज़र आते हैं मानुल्लाह साहब के, उनको जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और जैसा कि रोज़ाना की तरह एक खारी कार्ड और एसडी डिपार्टमेंट की जो कंप्लेंट्स है वो रोज़ाना की बुनियाद पर 90% जो है वो यहाँ पर आती हैं। जी, ट्रांसपोर्ट के सरकारी किरायों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक हो गई। कमिश्नर कराची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद ने आरटीए के हमरा कार्रवाई की, जिस दौरान एक मजदा कोच को तहवील में ले लिया गया, जबकि 2 पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोचेस पर मजमूई तौर पर 30,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिए। जी, इंट्रासिटी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो शहर में जायद किराए वसूली की शिकायत जो हैं वो उरूज पर पहुंच चुकी थी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जानिब से इसका नोटिस लिया गया है और तमाम अपने मातहत अफसरान को कहा गया है कि वो फील्ड में जाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरकारी रेट को जो है वो नाफिज करने में अपना किरदार अदा करें। इसी सिलसिले में डॉक्टर सायरा खान जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं सब डिवीज़न लियाकताबाद, इनकी जानिब से RTA अफसरान के हमरा आपसे कुछ देर कबल कार्रवाई की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आज की कार्रवाई क्या क्या रही? जी देखें, आजकल जो है किराए ज़्यादा होने की वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना था, तो कमिश्नर साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं कि हम यहाँ पे कार्रवाइयाँ करें। तो ये लियाकताबाद 10 नंबर पे हम मौजूद हैं, RTA की टीम हमारे साथ है। तो ये हम जो जहाँ से इंट्रासिटी बसेस जा रही हैं उनके किराए हम चेक कर रहे हैं और जो नोटिफाइड लिस्ट है उसकी आवेज़ा ना करने पर और ज़्यादा किराया वसूल करने पर हमने मुख्तलिफ बसेस के ऊपर जुर्माने आयद किए हैं। 15-15 हज़ार के हमने चालान किए। एक बस हमने अपनी तहवील में लिए, वो इम्पाउंड करवाई है लोकल एस। इम्पाउंड करने की वजह क्या बनी? वो सबसे ज़्यादा किराया ले रहे थे और जब हमने उनको हिदायत दी कि आप किराया वापस करें तो उन्होंने सख्त मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे और ये लिस्ट भी नहीं लगी हुई थी, तो उनकी जो वायोलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो वो बस इम्पाउंड हो गई है। ये बताइएगा कि इस कार्रवाई का तसलसल जो है वो जारी रहेगा या ये जुज़वक्ती कार्रवाई है? नहीं, इंशाल्लाह ये जारी रहेगी और जब तक हम, क्योंकि जो बसेज हैं उनका नंबर एक काउंटेबल नंबर है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि RTA के हमरा ये कार्रवाई करते रहें और जितना हम पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं वो दें। बिल्कुल, जो ज़िलाई अफसरान हैं उनकी अगर रमज़ानुल मुबारक के दौरान प्राइस चेकिंग की कार्रवाई को देखा जाए तो ये बात जो है वो कही जा सकती है कि अगर फ़राइज़ सही तरीके से अंजाम दिए जाएँ तो शहरियों को ज़ायद किराया वसूली के से मुकम्मल तौर पर छुटकारा दिलाया जा सकता है। जी, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के फैसले का खैर मकदम किया है। सदर मलिक शहजाद अवान का कहना है कि क्रैकडाउन का फैसला दुरुस्त इकदाम है, क्योंकि सड़कों पर ऐसी गाड़ियां भी चल रही हैं जिनकी फिटनेस पर संजीदा सवालात उठते हैं। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइए। देखिए वज़ीर आला सिंध ने बगैर रूट परमिट वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से हमने माजी में भी देखा, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती रहीं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इस हवाले से अपने कंसर्न मौजूद हैं। इसी हवाले से सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस शहजाद अमान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहजाद साहब, बताइएगा आप लोगों की क्या डिमांड? देखिए, सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब की तरफ से बगैर रूट परमिट और बगैर जो फिटनेस सर्टिफिकेट से गाड़ियां चल रही हैं तो उनके खिलाफ जो उन्होंने क्रैक डाउन का जो फैसला किया है, हम उनके फैसले का खैर मकदम करते हैं, लेकिन साथ में ये डिमांड भी करते हैं कि कुछ कराची शहर में इस तरह से गाड़ियां चल रही हैं जो कोई गाड़ियां चलने के काबिल नहीं हैं, उनकी कंडीशन इस तरह से है, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, RT सेक्रेटरी, PT सेक्रेटरी जो हैं, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, रूट परमिट जो है वो रिश्वत लेकर उनको जारी किए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो ज़रूर इस चीज़ का नोटिस भी लें और ऐसे अफसरान के खिलाफ जो है वो एक्शन भी लें। लेकिन इस पर हम ये भी डिमांड करेंगे कि कोई भी फैसला करने से पहले, पॉलिसी बनाने से पहले, हम जो कराची शहर के ट्रांसपोर्टर स्टेक होल्डर हैं उनको ज़रूर एतमाद में लेना चाहिए। यहाँ पर हो ये रहा है कि कुछ हुकूमत की B टीम है, कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो ख़ुद को ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे समझते हैं, लेकिन हकीकत मानों में ना उनकी एसोसिएशन है ना उनकी गाड़ी है। वो हमें नज़र आ रहा होता है कि बहुत सारी जगहों पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो उनके साथ मिल के वो फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से और रूट परमिट के हवाले से जो है बहुत सारे फैसले किए जा रहे होते हैं, जो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। जो जेन्युइन ट्रांसपोर्टर्स के स्टेक होल्डर हैं उनको फैसले से पहले जो हुकूमत जो है ऑन बोर्ड ले। ठीक है, शहजाद अमान मेरे साथ मौजूद थे, कहते हैं कि हुकूमत सिंध का फैसला खुशाइंद है, हादसात में भी कमी आएगी, ताहम उनका कहना है कि जो के कंसर्न है उनको भी दूर करना होगा। जी,
एमए जिन्ना रोड सी ब्रिज के करीब ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सड़क ग्रीन लाइन के तरक्याती काम के बायस बंद है, जबकि मुतबादिल रूट के तौर पर ट्रैफिक को मुख्तलिफ सिमतों की तरफ मोड़ दिया गया। इस हवाले से आगाह करेंगे मुबशिर हुसैन। जी मुबशिर। जी जैसा कि शहर कायद में तरक्याती कामों के बायस जहां ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवी का शिकार होती है, तो वहीं जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है उसका तरक्याती काम जारी है। और इस वक्त मैं एमए जिन्ना रोड के मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूं कि एक ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन अगर अकब में दिखाए तो ये एमए जिन्ना रोड सी ब्रिज के जो ट्रैफिक रूट है इसको बंद कर दिया गया है। सड़क ग्रीन लाइन की तरक्याती काम के बायस जो है वो बंद की गई है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि कोस्ट गार्ड से आने वाले ट्रैफिक को नुमाइश चौरंगी की तरफ भेजा जा रहा है, जबकि गार्डन चौक से सदर जाने वाली ट्रैफिक को नुमाइश यू टर्न से जो है वो सदर भेजा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि जब ये तरक्याती मंसूबा मुकम्मल होगा झांसी में घरों में आम इस्तेमाल होने वाली मिट्टी की बोतलें एक बार फिर शहरियों की तवज्जो हासिल करने लगी हैं। गर्मी के मौसम में मिट्टी की बोतल में पानी कुदरती तौर पर ठंडा रहता है, जिसके लिए न बिजली की जरूरत होती है और ना ही बर्फ की। यही वजह है कि शहरियों में इन बोतलों का रुझान बढ़ रहा है। मजीद बताएंगी राबिल सदीद। जी राबिल। जी बिल्कुल, देखिए दौर जदीद में जहाँ पे मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल नहायत कम होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मेलामाइन और प्लास्टिक के बर्तनों ने अब मिट्टी के बर्तनों की जगह ले ली है। और बिल्कुल मिट्टी के बर्तन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं, क्योंकि इसमें हम पहले देखते थे कि मिट्टी की जो है वो प्लेट्स बनाई जाती थी, कढ़ाई बनाई जाती थी, और अब सबसे मज़े की चीज़ जो है वो मिट्टी के जो है वो बॉटल भी बनाई गई है। जिस तरह मेरे कैमरामैन आपको हसनैन दिखाते चलें कि अब जो है ये मिट्टी की जो है वो बॉटल्स बनाई गई है, जिसमें आप आराम से जो है वो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ, ख़ास तौर पे जो मेल्स हैं या फिर जो बाहर सफ़र करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित होती है। तो दुकानदार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इसमें जो है ना पानी डालो, पानी ठंडा रहता है इसमें, तो इसकी प्राइस है 350-400 की है। ठीक है। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि पहले तो हम देखते थे कि प्लास्टिक के बर्तन, मिट्टी के बर्तन काफ़ी ज़्यादा मकबूल समझे जाते थे, लेकिन अब जो है इसका दौर ख़त्म हो गया, तो अब इसके नुकसानात क्या हैं प्लास्टिक वगैरह के? प्लास्टिक के नुकसान ये जो कचरा चला जाता है, जो ये मिट्टी वट्टी होती है, इसमें यह है कि पानी डालो, पानी ठंडा रहता है इसमें। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप लोग आते हैं, मतलब ख़रीदारी करते हैं इनके बर्तनों की? जी ख़रीदारी करते हैं, या ये बोतलें लेके जाते हैं, जो सामान लेके जाते हैं यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद थे और उनका यही कहना है कि लोग आते हैं और यहाँ से जो है वो मिट्टी के बर्तन आज भी ख़रीदते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले से जो है वो ये दौर में काफ़ी ज़्यादा मकबूल होते थे कि मिट्टी के बर्तनों में जो है वो खाना भी बनाया जाता था, और मिट्टी के बर्तन जो मटके टाइप होते थे उसमें पानी रखा जाता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी होता था, तो ऐसे में ज़्यादा बर्फ़ वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के जो दौर है उसमें प्लास्टिक के और मेलामाइन के बर्तनों ने जो है वो मिट्टी के बर्तनों की जगह ले ली है। लेकिन अब जो है वो एक दफ़ा फिर से मकबूलियत होने लगी है मिट्टी के बर्तनों की, और ख़ास तौर पर जो है मिट्टी के बर्तनों की जो बॉटल है वो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ और ख़ास तौर पर जो मर्द हज़रात बाहर सफ़र करते हैं या बाहर जो भी काम वगैरह करते हैं, तो ऐसे में मिट्टी की जो बॉटल्स है उसका इस्तेमाल लाजिम करें, क्योंकि इसमें जो है वो तो पानी भी ठंडा रहता है और दूसरा जो जितने भी जरासीम है उनसे भी मंदा महफूज रखता है। जी। अल्लाहवाला टाउन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। रिहायशियों के मुताबिक तवील बिजली बंदिश के बायस मामूलात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शदीद गर्मी में घरेलू कामकाज, कारोबार और बच्चों की पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है। आगाह करेंगी दुआ शकील फराजा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है वो अल्लाहवाला टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है बिजली की गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है, और मेरे साथ इस वक्त खातून शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कितनी आप जो है वो परेशान हैं, कितने घंटे यहाँ पे बिजली आती है और क्या मसाइल पेश आते हैं? दिन में लें कोई बात नहीं है, रातों को भी जो 12 बजे जाती है 2:30-3 बजे लाइट आती है। बंदा कहाँ करे, सारा दिन काम के थके हुए होते हैं, तो बंदा क्या करेगा? ना दोपहर को कोई काम कर सकते हैं, ना किसी के घर में मशीन लगा सकते हैं, बंदा क्या करे? आप ये बताएं। गैस तो चलो बाहर से मंगा के खा लेते हैं, लेकिन लोड शेडिंग तो नहीं होनी चाहिए ना, इतनी तो नहीं होनी चाहिए। हद होती है, रात को हो या दिन को हो, लोड शेडिंग तो लोड शेडिंग है ना बेटा।
जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ खातून जो है वो शहरी मौजूद थी। इनका यही कहना था कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से यहाँ के जो अल्लाह वाले टाउन के रिहायशी हैं, अल्लाह वाले टाउन के रिहायशी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बिजली ना होने के बावजूद बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि इनके लिए वो भी भरने जो है वो मुश्किल हो जाते हैं। शेड्यूल के मुताबिक बिजली जो है वो ना आती है ना जाती है, बल्कि ज़्यादा देर तक वो जाती रहती है। इसकी वजह से मामूल की जो ज़िंदगी है, मामूल के जो काम हैं वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुके हैं। इनका यही कहना है कि इस मसले को जो है जल्द से जल्द हल करवाना चाहिए। जी नासरीन, मेयर कराची की हिदायत पर बरसों बाद लियाकताबाद की अहम शाहराह एसएम तौफीक रोड की तामीर का आगाज कर दिया गया। ताजिरों और शहरियों ने फैसले को खुशाइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इससे आमदोरफ्त के मसाइल में कमी आएगी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। एसएम तौफीक रोड की तामीर शुरू, शहरियों में उम्मीद की किरण रोशन। लियाकताबाद की मसरूफ तरीन सड़कों में शामिल एसएम तौफीक रोड बरसों से टूट फूट का शिकार थी, जिसके बाइस शहरियों, ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना था। मेयर कराची की हिदायत पर अब इस अहम शाहराह की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। ताजिर रहनुमा हसीन कुरैशी का कहना है कि मेयर कराची का फैसला खुश आइंद है। सड़क काफ़ी अरसे से खस्ता हाल थी, जिससे कारोबार भी मुतासिर हो रहा था। माजी में नाकिस तामीराती काम के बाइस सड़कें चंद माह बाद टूट फूट का शिकार हो गईं। बारिश के दिनों में पानी जमा होने के मसले को भी मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। अभी मेयर कराची ने जो फैसला किया और काम शुरू कराया, हम उसके सराहते हैं, खुश आइंद है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से हम चाहते हैं कि इसमें मेयारी काम हो, मेयारी काम का मतलब ये है कि अभी आपने देखा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे जिस तरीके से हमने देखा कि सड़कें धसी हुई हैं, रक्शे उल्टे हुए हैं, लोग उसमें फंसे हुए हैं, तो ये मार्केट एरियाज है, इस यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ना हो और निकासी आपके लिए बेहतरीन सड़क हो। मार्केट के ताजिरों का कहना था कि मुर्तज़ा वहाब से दरख्वास्त करते हैं कि क्वालिटी पर कोई समझौता ना किया जाए, मयारी सड़क बनाई जाए। बस ये छोटी सी गुजारिश है, सड़क बनती जरूर है लेकिन इसमें गड्ढे ये कुछ टाइम बाद खराब हो जाती है, तो कोशिश है, इनसे रिक्वेस्ट है अच्छी सड़क बनाए ताकि लाइफ टाइम अच्छा चले। अब ये खड्डे हो जाते हैं, इसमें जान का नुकसान हो जाता है, खड्डे पड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, हवाएं फंस जाते हैं, बड़े मामला हो जाते हैं, तो कोशिश इनसे सड़क बना रहे जरूर है, बहुत अच्छी तरीके से बनाए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। शहरियों और ताजिरों को उम्मीद है कि एसएम तौफीक रोड की तामीर से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी बल्कि इलाके में कारोबारी सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलेगा। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। यहाँ आपको अपडेट करें, सिंध पुलिस में अक़लियती उम्मीदवारों की भर्तियों का मामला एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन गया। अहकामात के बावजूद पेशरफ्त न होने पर सवालात उठ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अक्टूबर 2025 में अक़लियती उम्मीदवारों की मेरिट पर भर्ती के अहकामात जारी किए थे। अहकामात महकमे दाखिला सिंध को दिए गए मगर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी हाँ, ये देखें, अक़लियती उम्मीदवार हैं 378 पुलिस कांस्टेबल हैं और इनको भर्ती होने के लिए वज़ीर आला सिंध ने भी अक्टूबर 2025 में अहकामात दिए थे। महकमा दाखिला ने भी लिखा था और जो सिंध पुलिस में मेरिट भर्ती का केस है, जो महकमा दाखिला को भी अहकामात जारी किए गए थे। सिंध के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 378 नौजवान हैं, 2 साल से तमाम टेस्ट पास करने के बावजूद भर्ती के मंजर हैं और इन उम्मीदवारों में हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन भी शामिल हैं। एकीम से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सिंध असम्बली महेश कुमार हसेजा ने खत लिखा है वज़ीर आला सिंध को, और जबकि सेनेट की जो मीनाक्षी बाकस है उन्होंने भी मुरासला भेजा था। इस खत में इन्होंने लिखा है कि उन्होंने तमाम इम्तिहानात पास किए हैं और वज़ीर आला सिंध अपने अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। 6 से 8 माह बाद इन तमाम नौजवानों की जो उम्र हैं वो सरकारी नौकरी की हद से क्रॉस कर जाएंगी। सेनेट और खुद वज़ीर आला ने भी अहकामात दिए लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ, ये कहना है महेश कुमार हसेजे का, और उन्होंने वज़ीर आला सिंध से अपील की है कि अक़लियती नौजवानों को पुलिस में कांस्टेबल भर्ती किया जाए। ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया। जारी गैंगवार के कारिंदे वसीउल्लाह लाखू के खिलाफ रेड वारंट जारी। वसीउल्लाह लाखू कत्ल, दहशतगर्दी और भत्ताखोरी समेत संगीन मुकदमात में मतलूब। मुलजिम के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में 60 से ज़ायद मुकदमात दर्ज। कारोबारी अफराद को भत्ता न देने पर धमकियाँ और हमलों में मुलव्वस। तवील कोशिशों के बाद महकमे दाखिला के जरिए इंटरपोल से रुजू किया गया। बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी इदारों को भी रेड वारंट से आगाह कर दिया गया। सिंध पुलिस की बड़ी कामयाबी, लियारी गैंगवार के करिंदे वसीउल्लाह लाखू के खिलाफ रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, अपडेट कीजिए।
देखिए जी, नदी गंगवार का कारिंदा रहा है वसीउल्लाह लाखों, जो कि जिसका खौफ आज भी कराची के ताजरों पर और सनतकारों पर छाया हुआ है, और ये भत्ता खुदी की वारदातें करवाता है, और आजकल भी बैरून मुल्क मुकीम है, और वहाँ से बैठकर ये अपना नेटवर्क यहाँ पर जो है वो सोशल प्लेट इस्तेमाल करके और यहाँ के गैंग के लड़के इस्तेमाल करके ये काम करता है। तो इसके हवाले से सिंध पुलिस की जानिब से काफ़ी वक्त से जो है कोशिश की जा रही थी कि किस तरह इंटरपोल जो है इसके रेड वारंट जारी करे और ये जहाँ भी है इसको गिरफ्तार करके जो है वो पाकिस्तानी हुकाम के हवाले करे। तो इसके लिए सिंध पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, और इसमें जो इससे पहले जो लेटर लिखे थे, पहले SIU जो इदारा है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जो कि बत्ता खोदी के खिलाफ काम करता है, उन्होंने IG सिंध को लिखा था, IG सिंध ने वजारत दाखिला को लिखा था, फिर ये विफाक की सतह पर चला गया, और उसके बाद वहाँ से लेटर्स लिखे गए थे इंटरपोल को कि भाई इस मुलजिम के जो कि दहशतगर्दी के वारदातों में और इसके अलावा कत्ल और भत्ता खोदी वारदातों में मुलविस थे, इसके रेड वारंट जारी किए गए, जिस पर अब जवाब आया है, और काफ़ी अर्से बाद जो इंटरपोल ने इसके रेड वारंट जारी कर दिए हैं, और जो है दीगर ममालिक को भी और दीगर जो इसके महकमे दाखिला के जो इंटरपोल को लिखा था, इसमें बैन अल-अक़वामी सिक्योरिटी इदारों को भी खबरदार कर दिए रेड वारंट्स निकले हुए हैं। ठीक है मेराज, आपका शुक्रिया। कराची में अहम तरक्याती मंसूबे सील किए जाने का मामला, अदालत ने फौरी कार्रवाई करते हुए अहम अहकाम जारी किए। अदालत ने साइट का मुआयना करने के लिए नासर मुकर्रर कर दिया है। हिदायत दी गई साइट विजिट करके वहां मौजूद मशीनरी की मुकम्मल फहरिस्त तैयार करें। नाजिर की फीस 2 लाख रुपए मुकर्रर की गई, जो दरख्वास्त गुजार अदा करेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखें जी, ये सिंध हाई कोर्ट कराची आईनी बेंच की रूबरू रेड लाइन 2 मंसूबा सील करने का मामला जो है उस मुतल्लिक समाअत हुई है। अदालत ने रेड लाइन के साइट का विजिट करने के लिए नाज़िर मुकर्रर कर दी है। अदालत ने हिदायत की है कि नाज़िर सिंध हाई कोर्ट साइट विजिट करे और वहां मौजूद मशीनरी की फहरिस्त तैयार करके पेश करे। अदालत ने नाज़िर सिंध हाई कोर्ट की फीस 2 लाख रुपए मुकर्रर कर दी है। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक नाज़िर सिंध हाई कोर्ट की फीस दरख्वास्त गुजार जो है अदा करेगा। अदालत ने साइट फौरी डीसील करने की जुबानी इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। अदालत ने ट्रांस कराची, सिंध हुकूमत, मुख्तियारकार, पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। इसमें वकील दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर सलाहुद्दीन तक मौक़िफ़ है कि रेड लाइन मनसूबा जो है लाट 2 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पाकिस्तानी और चीनी कंपनी को दिया गया था। ट्रांस कंपनी ने रेड लाइन मंसूबे का डिजाइन 2.5 साल बाद दरख्वास्त गुजार को फराहम किया था, जबकि रेड लाइन की साइट 30 माह बाद कॉन्ट्रैक्टर के हवाले की गई थी। वकील दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर सलाहुद्दीन के मुताबिक तनाज़े के हल के लिए बनाए गए बोर्ड ने मंसूबे में ताख़ीर का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया था। बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्टर को 3.7 अरब रुपए इजाफी अखराजात और ताख़ीर की मद में अदा करने का फैसला किया था। गुज़िश्ता रोज मुख्तियारकार, पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ने अख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते हुए दफ्तर और साइट सील कर दी है। उनका कहना था कि कॉन्ट्रैक्टर की अरब रुपए की मशीनरी साइट पर मौजूद है, जो माल गनीमत बनी हुई है। मुख्तियारकार और पुलिस को दरख्वास्त गुजार का दफ्तर और साइट जो है वो सील करने का अख्तियार ही नहीं है। जी ठीक है मुमताज़, आपका शुक्रिया।